Hello friends, myself Rasika Pagadia from Arham College. In the last lecture, we have started with the theory of statecraft, right? In that we saw certain points, like we saw the first point is Machiavelli elaborated the doctrine of reason and the ad, then end justice the means, state is sovereign, autonomous and non-religious, a prince must combine the quality of lion and a fox, use double standard of politics, favored despotic rule, then maintain strong army, then human nature is low and ungrateful, so prince must consider this nature of man, should try to win popularity of his people. Now the last point is a prince must have counsel of wise men and not of flatters. Now moving towards the next point, that is our 11th point, separate politics from religion. Before Machiavelli's medieval politics, philosopher believed that the religion was the basic of the state. See, before Machiavelli, what it was thought कि बाबा like before Machiavelli is medieval political philosopher. जब ये medieval political philosopher सब चल रहा था, उससे पहले क्या बिलीव किया जाता था कि religion was the basic of the state. कि religion क्या है? It is one of the basic of the state. But Machiavelli sorry where we were, but Machiavelli emancipated the state completely from the control of the church. See, पहले क्या था, चर्च में जो रहते थे ना, चर्च के अंदर बहुत से ऐसे एरियाज आते थे और वो एरिया चर्च कंट्रोल करेगा, राइट. बट जब मैचिवेली ने बोला तो मैचिवेली ने चर्च और स्टेट completely अलग अलग कर दिया. He denied medieval's philosophy of religion. हाँ, उसने philosophy of religion क्या है, ये अलग है और politics अलग है. You can't mix both the things. He repudiated the theory of Aquina that man needs the guidance of the divine law. उसने क्या बोला, उसने theory लिखी, उसके अंदर क्या लिखा उसने कि मैन को गाइडेंस चाहिए, ऑफ लॉ के बारे में उसको सारा गाइडेंस चाहिए. Machiavelli said that only end which man can place before him is the pursuit of his well-being in the material value in life. Machiavelli said that only end which man can place before him is the pursuit of well-being in the material value in life. He did not view them as having a moral end and purpose, but gave importance to man's worldly life. He डिड नॉट व्यू देम एज अ, उसने मैन को क्या देखा ऐसे लाइक खाली उनको मॉरल और एंड पर्पस ऐसा कुछ नहीं है, बट उनको एक वर्ल्डली लाइफ भी दिया, एक अच्छी लाइफ भी चाहिए. सिर्फ मॉरलिटी रिलीजन ये सब छोड़ते हुए भी उनको एक वर्ल्डली लाइफ जैसे एक अच्छी लाइफ चाहिए. ही बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी विथ इट्स ओन प्रिंसिपल्स एंड लॉ. सी व्हाट मैचिवेली बिलीव्ड इज, Machiavelli believed that politics is an independent activity, like independent activity है, it is not dependent on anyone, और उसकी principles and laws रहते हैं अलग अलग. like अपन ने ये सेंटेंस पहले भी देखा था. तो Machiavelli believes that politics is an independent activity, it has its own principle and laws, और the laws and principles keeps on changing as per the ruling party and all. ये अपन ने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, शायद लास्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक में भी ये पढ़ा था अपन ने. मॉरल एंड रिलीजियस कंसिडरेशन कैन नॉट बाइंड द प्रिंस, स्टेट इज अबव एंड आउटसाइड द रीजन. सी, मॉरल और रिलीजन इन दोनों को देखते देखते अपन प्रिंस को किसी इसमें बांध नहीं सकते कि भाई ये अपने इस रिलीजन के अगेंस्ट है, ये मॉरलिटी के अगेंस्ट है, ऐसे आप प्रिंस को बहुत ज़्यादा बांध नहीं सकते. तो स्टेट क्या है, स्टेट इज अबव एंड आउटसाइड द रिलीजन. Machiavelli did not ignore religion and morality. Machiavelli ने क्या किया, Machiavelli ने रिलीजन एंड मॉरलिटी इग्नोर नहीं की. आई नो कि दोनों चीज़ें अलग अलग है, बट दोनों को इग्नोर करके भी नहीं चलेगा. लाइक पॉलिटिक्स एंड रिलीजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग है, तो इसका मतलब ये है क्या यू इग्नोर ऑल दिस? नो, यू कांट इग्नोर. In the opening chapter of the discourse,
He says prince who want to maintain themselves, respect all religion, preserve the purity of all region. सी उन्होंने उनके इसमें चैप्टर में भी बोला है कि प्रिंस जिसको अपना अच्छे से सब कुछ स्टेट चलाना है, सब कुछ अच्छे से प्रिजर्व करना है, सबसे पहले उसने हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसके जो रिलीजन का कल्चर है, जो रिचुअल्स है, उन सबको मान देना चाहिए. ही शुड रिस्पेक्ट दैट. ही सेड रिलीजन इज यूजफुल ओनली एज एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट. उसने क्या बोला? ही सेड रिलीजन इज यूजफुल ओनली एज अ ऑर्गन ऑफ द स्टेट. ही गेव ओनली एन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू टू रिलीजन. रिलीजन क्या है? एक ऑर्गन ऑफ द स्टेट है. ऑर्गन यानी अपने बॉडी पार्ट्स में ऑर्गन्स रहते हैं, तो उसी तरह ये रिलीजन भी वन ऑफ द ऑर्गन है स्टेट का. और वही इट गिव ओनली एन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू टू रिलीजन, और उसने सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू टू रिलीजन दिया है. ही एडवाइज द रूलर दैट रिलीजन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ अ कम्युनिटी. उसने ये भी एडवाइस दिया रूलर को कि रिलीजन जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एन कम्युनिटी. सी बिना किसी रिलीजन के कम्युनिटी चल पाएगी क्या आपकी? नहीं. विदाउट एनी तो कम्युनिटी चलना इम्पॉसिबल है. सो ही एडवाइज दैट द रूलर plays an religion plays an important role in the community. Sorry. According to him, religion is necessary for unity and integrity of the people within the state. See, religion necessary है. क्यों? For the unity and integrity of the people within the state. See, religion is necessary ताकि अपना स्टेट हमेशा यूनाइटेड रह सके, इंटीग्रेटेड रह सके. क्योंकि पीपल बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं. लाइक एक रिलीजन के लोग अपने आप वो लोगों का एक बॉन्डिंग रहता है, अपने आप वो रिलीजन रहते हैं. आप किसी रिलीजन के खिलाफ एक आवाज़ उठाओ, उस रिलीजन के सारे लोग इकट्ठा होके दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू. इज दैट सो? राइट ना? तो इसीलिए रिलीजन इज नेसेसरी फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द पीपल. Common religion creates a sense of unity among people. Common religion creates a sense of unity among people. See, अगर common religion रहा तो क्या है? It creates a sense of unity among people. Religious rituals, beliefs establish social harmony. Religious rites, beliefs establish social harmony. It also cultivates civil sense and patriotic spirit. It also cultivates civic sense and patriotic spirit. Patriotic spirit यानी देशभक्त की भावना जागृत होती है उनमें. मतलब अपने देश के प्रति मान, सम्मान, ये सब कुछ जागृत होता है उनमें. It also cultivates civil and political patriotic spirit. Decline of respect for religion among the people is a sign of ruin of the state. See, decline, अगर आप उस स्टेट में अगर आप रिलीजन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दो तो क्या होगा? आपका स्टेट धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा. मतलब इट वुड बी वन ऑफ द साइन फॉर द योर स्टेट ऑफ. एक साइन रहता है वो कि आपका स्टेट अभी बहुत दिन तक अच्छे से नहीं चलने वाला है. बहुत ज़्यादा चेयर्स होने वाला है, बहुत ज़्यादा रायोट्स होने वाले हैं आपके स्टेट में. क्यों? क्योंकि यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द रिलीजन. जैसे जैसे आप रिलीजन को रिस्पेक्ट करना डिक्लाइन करोगे वैसे वैसे यू विल एंड अप विद सम प्रॉब्लम. ही सेड रिलीजन कैन नॉट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स एंड द चर्च कैन नॉट कंट्रोल द स्टेट. सी, ही सेड religion cannot influence politics and the church cannot control the state. अभी उसने क्या बोला? He said religion जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता और चर्च भी स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकता. In fact, the Soviet state enjoys absolute power over all individuals and institutions. In fact, क्या बोला यहाँ पे? ये जो सोवियत स्टेट है वो enjoys absolute power over all individuals and institutions. As such, the church is subordinate to the state. As such, the church क्या है? एक subordinate to the state है. मतलब ये चर्च स्टेट को चलाने में एक तरह से हेल्प भी करता है.
Thus, Machiavelli separated religion from politics and waved away for emergency of the secular state. Thus क्या बोला यहाँ पे, मैचिवेली ने क्या बोला है, रिलीजन को उसने अलग किया है पॉलिटिक्स से एंड paved way from emergency of the secular state, और स्टेट को अपना सेक्युलर बनाने की ट्राई की है. He was not against the religion and morality. इसका मतलब ये है क्या, उसने रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग अलग किया मैचिवेली ने, तो इसका मतलब ये है क्या, उसने किसी को भी कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया, किसी को भी कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ऐसा है क्या, नहीं. उसने मॉरलिटी और रिलीजन उनको उतना जितना ज़रूरी है उतना, मतलब ऐसा नहीं कि वो अगेंस्ट है रिलीजन एंड मॉरलिटी के, वो अगेंस्ट नहीं है. ही इज़ जस्ट सेइंग डोंट मिक्स पॉलिटिक्स एंड रिलीजन. ही ओनली पर्पस टू डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरलिटी एंड प्लेस द स्टेट अबव मॉरलिटी एंड रिलीजन. सी, उसने क्या किया, उसने सिर्फ बोला कि मॉरलिटी एक अलग स्टैंडर्ड है एंड ये स्टेट एक अलग चीज़ है, राइट, और रिलीजन एंड मॉरलिटी ये दोनों भी अलग चीज़ है. ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, प्लीज़ ये सारा मिक्स नहीं करते हैं. और उसने प्रूव करके दिखाया कि अगर आप रिलीजन मिक्स करोगे पॉलिटिक्स में तो क्या होगा, आपका स्टेट धीरे धीरे रुइन हो जाएगा एंड ऑल. सो ही सेइंग he only purposed two different standards of morality and placed the state above morality and religion. According to Machiavelli, state is the highest form of social organization and the most necessary of all institutions. See, according to Machiavelli, state is the highest form of social organization. According to Machiavelli क्या है यहाँ पे, ये state क्या है, it is the highest form of social organization एंड मोस्ट नेसेसरी ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन. से स्टेट क्या है, ये स्टेट सबसे बड़ा है और ये एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन भी है. इट सेड पॉलिटिक्स इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी विथ इट्स ओन प्रिंसिपल एंड लॉ. उसने ये भी बोला कि पॉलिटिक्स भी एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है और पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल एंड लॉज पूरे अलग अलग हैं. स्टेट इज नॉन रिलीजियस एंड सेक्युलर. स्टेट क्या है, स्टेट ये अपना नॉन रिलीजियस है एंड सेक्युलर है. इट हैज़ इट्स ओन रूल्स ऑफ कंडक्ट टू फॉलो. अब इसके पास क्या है, इट हैज़ इट्स ओन रूल. स्टेट के अपने अपने रूल रहते हैं, राइट, और वो उसको फॉलो करके ही आपको आपकी एक्टिविटी करनी पड़ती है. मैचिवेली सैंक्शन द यूज ऑफ इमोरल मेन्स बाय द रूलर whenever it was necessary to do so to save the state. See, मैचिवेली ने क्या किया, उसने सैंक्शन किया द यूज़ ऑफ इमोरल मेन्स बाय द रूलर, जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे अपनी स्टेट की रक्षा भी की है उसने. Thus, the separation of politics from ethics is the sense of Machiavelli. Since देखो पॉलिटिक्स अलग करने का फ्रॉम इथिक्स ये क्या है, इज द सेंस ऑफ Machiavelli. Now moving towards the 12th point, prince must be free from emotion. Prince should exploit emotions of his people for the purpose of the state. अभी प्रिंस को क्या है, लोगों के इमोशन का ध्यान रखना पड़ता है ताकि उसका स्टेट अच्छे से चले. He should be cool, calculating and opportunistic. किंग कैसा रहना चाहिए, प्रिंस कैसा रहना चाहिए, he should be cool. सब कुछ बराबर से कैलकुलेट करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नहीं अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. हिज सजेशन इज दैट अ प्रिंस मस्ट नो हाउ टू एक्ट एट अ बीस्ट. उसने एक मैचिवेली ने क्या सजेस्ट करता है, एक्चुअली एक प्रिंस को पता रहना चाहिए कि आप कैसे काम कर रहे हो, कैसे काम करना चाहिए, कैसे एक्ट कर रहे हो. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द 13th पॉइंट, दैट इज ऑर्डर्ड स्टेट. In The Prince, Machiavelli advocated absolutism and an effective government. See, in जो प्रिंस बुक है उसमें मैचिवेली ने क्या बोला है, एब्सोल्यूटिज्म एंड एन इफेक्टिव गवर्नमेंट. This advocacy of absolutism was due to the fact that he had witnessed anarchy
lawlessness, corruption and misrule that prevailed in Italy of his time. See, this absolutism, अब क्या हो गया यहाँ पे, द एब्सोल्यूट वॉज ड्यू टू, अभी इतना परफेक्ट क्यों चल रहा था सब कुछ, क्योंकि विटनेस्ड अनार्ची, लॉलेसनेस, करप्शन एंड मिसयूज दैट प्रिवेंट इन इटली एट दैट टाइम. इटली में बहुत ज़्यादा चल रही थी, बहुत ज़्यादा, द कंडीशन वॉज नॉट स्टेबल एंड नॉट गुड. वाई दैट वॉज, इट वॉज ड्यू टू प्रॉपर लॉ नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा करप्शन चल रहा था और मिसरूल्स थे उस वक्त, मतलब प्रॉपर रूल्स कुछ नहीं थे, कोई भी कुछ भी अपनी मनमानी कर रहा था. सो इट लेड टू एन समथिंग फाइट, हर झगड़े वगड़े सब चालू थे इटली में उस वक्त. हाँ, he had witnessed how King Charlie VIII of France had captured Florence without being offered resistance. अभी मैचिवेली ने देखा किस तरह से किंग चार्ली एट ऑफ फ्रांस, किंग चार्ली फ्रांस का, उसने फ्लोरेंस कितनी आसानी से कब्जा कर लिया था, विदाउट बीइंग ऑफर्ड रेजिस्टेंस, कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं, आसानी से उसने फ्लोरेंस पे कब्जा कर लिया था. Therefore, Machiavelli advocated a well-organized order and military strong state. तो इसलिए मैचिवेली क्या बोल रहे हैं कि आपके पास मिलिट्री स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रहनी चाहिए, प्रॉपरली ऑर्डर्ड फॉर्म में रहनी चाहिए. अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रही तो आप अच्छे से रेजिस्ट कर पाओगे. अगर कोई फॉरेन कंट्री आप पे अटैक करे तो यू कैन रेजिस्ट इन अ बेटर वे. Without a strong state, a country had no hope of survival in the international politics. See, if you don't have strong army, आप कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सर्वाइव नहीं कर पाओगे. बराबर है ना. अगर आपका आर्मी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग रहेगा तब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में, तब भी आपका कंट्री स्टेबल रहेगा. अगर आपका कंट्री स्टेबल रहेगा तब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यू विल स्टैंड समवेयर, राइट. अगर आपका मिलिट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या कर पाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे. He believed that an ordered state was the only security against force of external aggression and internal chaos. See, he believed that an ordered state was the only security. प्रॉपर मैनर में अच्छे से अगर आपका स्टेट ऑर्गेनाइज है और प्रॉपर आपकी सिक्योरिटी है आपके पास, तब भी आप एक्सटर्नल थ्रेट से बच पाओगे और आपका इंटरनल चाओस भी अपने आप कम होता है. बराबर है ना. अगर आपके पास आर्मी स्ट्रॉन्ग है, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, तो बाहर की कंट्री कोई आएगी तो क्या होगा, अपने आप यू विल रेजिस्ट ओवर इट, राइट. आप अच्छे से रेजिस्ट कर पाओगे, तब भी आप सिक्योर रहोगे और एक्सटर्नल खतरे से बचोगे. और मिलिट्री अच्छी है तो अपने आप इंटरनल चेयर्स भी अपने आप कम होते हैं. लोग डर के अपने आप इंटरनल चेयर्स भी कम हो जाएंगे एक स्टेज के तक. सो दिस वॉज द व्यू ऑन द statecraft. So we end up their topic today. We'll start with the views on state. Machiavelli was a practically politician who was greatly disturbed by the condition of his native state. Machiavelli क्या था, he was a politician, but वो नेटिव स्टेट के बारे में, लाइक नेटिव स्टेट यानी जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे जैसे अपन नेटिव प्लेस बोलते हैं अपना, वैसे नेटिव स्टेट के कंडीशंस के बारे में सुन के ना कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे. ही नेवर क्लेम टू बी अ पॉलिटिकल फिलोसोफर. उसने कभी खुद को ऐसे, मैं पॉलिटिकल फिलोसोफर हूँ, मैं बहुत बड़ा फिलोसोफर हूँ, ऐसे उसने कभी क्लेम नहीं किया. हिज प्रिंस कंटेन्स द टिप्स गिवन इन द फैक्शनल प्रिंस. उसने जो प्रिंस लिखी है उसके अंदर उसने बहुत सारे टिप्स लिखे हैं प्रिंस को लेके एंड ऑल. द प्रिंस एज मेनली अ हैंडबुक ऑन द आर्ट ऑफ रूलिंग एंड मेंटेनिंग oneself in power. In his advice is the mainly concerned with the actual state of his time without bothering about its original nature, functions, etc. द प्रिंस की जो हैंडबुक लिखी है उन्होंने, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि बाबा पावर कैसे मेंटेन करनी चाहिए, एडवाइस कैसा होना चाहिए,
एक्चुअली स्टिल कैसा होना चाहिए, कब कैसे बोरो हो विदाउट बोरोइंग अबाउट इट्स ओरिजिन, लाइक बिना किसी के सोचे समझे, बिना किसी को ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ नहीं है, एंड यू कैन हैव अ गुड स्टेट जहाँ पे आप सब कुछ अच्छे से फंक्शन हो सके। एलन सेज द प्रिंस वॉज रिटन ऑफ अ प्रिंस फॉर अ प्रिंस एंड फॉर नो वन एल्स। अभी एलन क्या बोल रहे हैं, ये जो प्रिंस बुक है इट वॉज रिटन ऑफ अ प्रिंस, वो एक प्रिंस ने ही लिखी है, एक प्रिंस के लिए लिखी है और किसी के लिए नहीं लिखी है। नाउ Machiavelli's, should we start the new topic? Machiavelli's idea of state. Wait, let me check. I think we'll stop today's topic here only. Read the topic well, like especially the वो statecraft, वो पूरा व्यूज़ है जो Machiavelli's के व्यूज़ है on statecraft. Study that properly. If you have any doubt, just mail me on my mail ID. Thank you.